Hello students, today we are going to learn about Unit 3 ITC some solutions, and it is going to be very useful. So let us discuss one by one all the sums. Here first of all, computation of input tax credit available with MS Motors Limited. So first example, directly we will discuss the solution. Accounting and auditing service. So whether GST paid on it is allowed as a credit or not. So how much GST you have paid? So 17,200 is paid. So that is why it is allowed as a deduction. Now next one is a health insurance service for employee, and services are not provided under the government obligation. So that is why no credit is available. So whatever GST amount paid, that is not to be written here, and you have to write down nil. But if it is written that services are provided under government obligation, then you have to write down in the question. The amount should be written in the question. So that you should keep in mind. ये आपको बात ध्यान में रखना है, और इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज हो सकता है एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। Routine maintenance of the cars manufactured by MS Motors Limited, 28,000. As he is engaged in manufacturing of motor cars, so that is why whatever routine maintenance paid by them is allowed as a deduction. So 28,000 deduction is available. The next one, repair service for office building. Cost of repair is charged to profit and loss account. So that is why whatever repair charges, repair services paid on that, whatever GST paid, that is 28,400 is allowed as a deduction. Next one, hotel accommodation and conveyance facility to employee on vacation. So this is the under totally block under section 17 subsection 5. So that is why no credit is available. Nil is to be written here. Testing services availed for car engines 19,000. So that is also available because he is engaged in manufacturing of motor cars. So such kind of routine maintenance, testing service, etc. Obviously, this kind of expenditure is going to be incurred. So that is why this amount should be written. So 19,000 should be here. We have write down. Now total credit available with him is 92,600. Here focus on the title. Computation of input tax credit available with MS Motors Limited. So that is why we have allowed him whatever routine maintenance cars expenses and testing service availed for car engines, and whatever GST paid on it is allowed as a deduction. So total credit available is 92,600. So this way you can solve this question, and you can get full marks. Goods purchased without invoice. As documents are not available, so obviously no credit is available. If you have no invoice, then as per section 16, there are certain conditions which is laid down to get the input tax credit. And here goods is purchased without invoice, so obviously you are not going to get any amount of credit on it. Now, goods purchased from Akhil Limited, full payment is made by Sonam Limited to Akhil Limited against such supply, but tax has not been deposited by Akhil Limited. So here also credit is not available. Why? What is the reason? तो भाई साहब इसमें ये रीजन है कि एज टैक्स इज नॉट पेड बाय द अखिल लिमिटेड. सो देखो, पहले में ये रीजन था कि डॉक्यूमेंट नहीं था, और दूसरे में ये रीजन है कि उसके पास ये टैक्स उसने डिपॉजिट ही नहीं किया गवर्नमेंट को. तो इसलिए इस केस में उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा. परचेज ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस. सो ऑब्वियसली अगर भाई वो बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स को यूज ही नहीं करता, तो आप कैसे उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो? तो आपको रीजन लिखना है नोट में, बहुत सिंपल, नो बिजनेस पर्पस. सो दैट इज व्हाई अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू हिम इज nil. Now purchase of goods from Komal Limited. Invoice of Komal Limited is received in the month of September 2023, but goods were received in October, month of October 2023. So obviously you are calculating credit for September 2023. It is written here. या देखो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो ये वाली चीज पे कि उसने सितंबर 2023 का आप कैलकुलेशन कर रहे हो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल. तो इस केस में आपको कितना क्रेडिट मिल सकता है? तो सिंपल बात है यहाँ पे कि आप उसको अभी तक
उसका जो गुड्स है वो आपको मिला है अक्टूबर में, तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट आपको अक्टूबर में मिलेगा। अभी आप क्यों मिलेगा? तो यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा नील। नाउ गुड्स परचेज अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम विक्रम लिमिटेड, सोनम लिमिटेड has made payment to Ikram Limited for such purchases in the month of October 2023। देखो पेमेंट वो 180 डेज के अंदर अंदर कर सकता है। यहाँ पे वैलिड इनवॉइस था, इसलिए यहाँ पे उसको क्रेडिट मिल जाएगा सोनम लिमिटेड को। और पेमेंट को एक ड्यूरेशन होता है, उस टाइम तक आपको मिल जाए तो चलता है। तो यहाँ पे 38,000 का क्रेडिट उसको मिल गया। तो टोटल क्रेडिट अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023, ईयर मंथ इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप लोग। तो ये टोटल 38,000 का आपको क्रेडिट मिल गया। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड एग्जांपल, computation of ITC available to the company for the month of Jan 2023। So here we are talking about January 23। So now purchase of machinery where debit note is issued। तो यहाँ पे आपने मशीनरी परचेज किया है जिसके लिए आपको डेबिट नोट इशू किया है, तो उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं? तो डेबिट नोट इज ए वैलिड डॉक्यूमेंट, सो दैट इज व्हाई व्हाटएवर जीएसटी पेड ऑन 2 लाख दैट इज ऑफ 2,15,000 क्रेडिट इज अवेलेबल। देखो मशीनरी में एक रूल है कि अगर आप मशीनरी पे जो जीएसटी पे करते हो और मशीनरी का प्राइस और जीएसटी का प्राइस दोनों मिला के वो टोटल वैल्यू पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो यहाँ पे आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये एक सिंपल बात ध्यान रखना। हाँ, बट अगर आपने, जिसका हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, बट अगर आपने जीएसटी पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, जीएसटी अमाउंट पे अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। देखो कभी भी ब्लॉक क्रेडिट ब्लॉक नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट, जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन में बेनिफिट मिल जाता है अगर आप यहाँ पे क्रेडिट नहीं लेते तो। इनपुट परचेज वॉज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू मिस्टर एक्स, अ जॉब वर्कर एंड ए रजिस्टर्ड सप्लायर। तो यहाँ पे भी याद रखना है कि इनपुट परचेज वो डायरेक्टली डिलीवर, आपने एक परचेज किया बट वो डायरेक्टली अपने अपने जॉब वर्कर को डिलीवर कर दिया जो रजिस्टर्ड सप्लायर था, तो उस केस में क्या आपको क्रेडिट मिलेगा? ऑब्वियसली वो आपके लिए तो परचेज है ही, इसलिए आपको वो क्रेडिट तो मिल जाएगा। नाउ कंप्यूटर परचेज and depreciation was claimed on the said GST portion under the Income Tax Act 1961। देखो मैंने आपको ये पहले ही ट्रांजैक्शन में बताया, ये इससे थोड़ा अलग है कि अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हो जीएसटी अमाउंट पे, टोटल प्राइस पे, जैसे मान लो कि मशीनरी का प्राइस है 15 लाख, उस पे जीएसटी 5 लाख है तो हुआ 20 लाख। अगर आपने डेप्रिसिएशन 20 लाख पे किया है तो आपको यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, बट अगर आपने 15 लाख पे जीएसटी क्लेम किया है, सॉरी डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा 5 लाख का। एक सिंपल बात है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना है कि जब आप डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट पे क्लेम करते हो या तो फिर आप टोटल अमाउंट पे ना करते हुए, कि जो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी कंप्यूटर्स है जिसके जो नेट कॉस्ट है विदाउट जीएसटी उस पे चार्ज करते हो। नाउ नेक्स्ट वन, works contract service availed for construction of staff quarters within the company premises। So here credit is blocked because it is clearly written in the section 17 subsection 5, whatever works contract services availed for the construction of staff quarter within the company premises, it is totally blocked। So now available ITC for the month of January 2024 is 3,15,000 if you make the total। So this is very easy sum. Now next sum, computation of ITC available to the company for the month of September. Here also how to solve the sum? Very easily you can solve. Particulars amount rupees purchase of cabs used for the transportation of its employee log। यहाँ पे एक सीटिंग कैपेसिटी देखा जाती है कि अगर सीटिंग कैपेसिटी 14 से कम है यानी 13 या उससे बराबर है, तो वो कार अगर आप परचेस करते हो तो उसका क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है। बट यहाँ पे 3 बातें आपको और बातें याद रखनी है कि कभी-कभी ये क्रेडिट मिल भी जाता है कि अगर आप मोटर ट्रेनिंग स्कूल चला रहे हो और कार परचेस कर रहे हो तो उसपे जो जीएसटी पे कर रहे हो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप शोरूम चला रहे हो कार का और कार खरीद के कार बेचना वो आपका बिजनेस है तो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर आपने कार को, देखो 3 यहाँ पे 2 पर्पस मैंने बताया कि यहाँ पे परचेज ऑफ कैब्स फॉर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इज एम्प्लॉई है, यहाँ पे ना सीटिंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसका सीटिंग कैपेसिटी 14 से ज्यादा हो गया या 14 हो गया तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा।
और उससे रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस है उसका भी आपको क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगर हाँ, एक कार का एक यहाँ पे और भी क्रेडिट मिलता है कि अगर आप कार का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए करते हो, तो भी आपको क्रेडिट मिल जाता है बिकॉज़ वो आपका बिज़नेस बन जाता है। Input consisting of 4 lots, out of which second lot was received during the month, available on the receipt of last lot. तो यहाँ पे भी क्रेडिट नहीं मिलता बिकॉज़ जब तक आपको लास्ट लॉट्स ऑफ द गुड्स नहीं मिल जाता, तब तक वो क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है। Now, next one, capital goods. Out of 3 items, invoice of one item was missing and GST paid on them item was rupees 50,000. So document are not available for rupees 50,000. देखो यहाँ पे हमको 2,50,000 था टोटल अमाउंट, बट आपको 50,000 का अभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज़ 3 आइटम में से एक आइटम का जो इनवॉइस है वो अभी तक मिसिंग है, वो आपको मिला नहीं है। सो इसलिए आपको सिर्फ 2 लाख का ही क्रेडिट मिलेगा, 2,50,000 का नहीं मिलेगा। आउटडोर केटरिंग सर्विस अवेल्ड ऑन वुमेन्स डे, ऑब्वियसली ये तो ब्लॉक है। ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कवर किया गया है इसको, तो ये आपको मिल जाएगा। अब तो उसको डैश लिखना है। सो आईटीसी अवेलेबल कितना हुआ? 2 लाख। तो इस तरह से आप ये सारे सम सॉल्व कर सकते हो, बट ध्यान रखो पहले आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वो आपको पढ़ना है। उसका मैंने अच्छा एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो का लिंक देख सकते हो। पहले उसको पढ़िए ब्लॉक क्रेडिट अच्छी तरह से एंड देन सॉल्व दिस एग्जांपल सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये सारे सम्स आपको 5 मार्क्स में आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। इफ यू हैव एनी डाउट then you can write down in a comment box. I will try to make a reply for the same.